morning, students. Myself Rajiv Verma is going to continue the calculus. In previous lecture, I have covered up to the differentiation and related formulas of differentiation. Now we are taking the topic that is integration. What is integration? Integration is the process of finding the function whose derivative is given. For this reason, the process of integration is called the inverse process of differentiation. Inverse process of differentiation. For example, if we are having a function fx, d by dx of fx is f dash x. Similarly, the integration of f dash x dx is equal to fx plus a constant of integration, यानी ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. अगर fx का डिफरेंशियल f डैश x आता है तो f डैश x का इंटीग्रल fx आएगा with a constant of integration which is known as c. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशियल का सिंबल है डी बाई डी एक्स, फॉर इंटीग्रेशन द सिंबल इज दिस वन and dx, x raised to the power n dx. If we are integrating this number, then it will be x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where n is not equal to minus 1. This will be the integration of x raised to the power n. Okay, if we are taking the differential d by dx of x raised to the power n plus 1 upon n plus 1, then what will happen? अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं then 1 upon n plus 1 remains same as it is a constant, and the differential of x raised to the power n plus 1 becomes n plus 1 x raised to the power n plus 1 minus 1 by the formula of differentiation. These two are cancelling out. This one is cancelling out with this, and we got the relation x raised to the power n. यानी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें x raised to the power plus 1 upon n plus 1 plus c आंसर आता है, और अगर हम x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 का डिफरेंशियल करते हैं तो we get x की पावर n अगेन, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, या जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है. तो इन फिजिक्स इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट द नेट वर्क डन, टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी. तो इन सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस वी आर यूजिंग दिस फार्मूला. इसका और जो है एग्जांपल हम ले लेते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट x की पावर 2 dx, देन इट विल बी x raised to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c, it will be x raised to the power 3 upon 3 plus c. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं x की पावर 3 upon 3 को डिफरेंशिएट करता हूँ, then the differentiation of this will be 1 by 3 and 3x raised to the power 2. These two are cancelling out, we got x square again. Similarly, we can take more examples. For example, x raised to the power minus 2 dx, then it will be x raised to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c, and we got x raised to the power minus 1 upon minus 1 plus c, or 1 upon x plus c. ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, उनके इंटीग्रेशन के भी डायरेक्ट फार्मूलेज हैं. जैसे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी. अगर मैं इंटीग्रल कोस एक्स की बात करूँ, कोस एक्स डी एक्स, तो इट विल बी
minus it will be sin x plus c। अगर मैं e की पावर x की बात करता हूँ dx it will be e raised to the power x only। So these are few formulas for obtaining the integration। If we are having suppose sin ax plus b dx, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो वी नो द फार्मूला ऑफ द sin x इज माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये जो इंटीग्रल है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द बाउंड्रीज, सो वी शुड इंट्रोड्यूस प्लस सी हियर। इसके बाद मैं डेफिनिट इंटीग्रल की भी बात करूंगा। पहले अगर हम इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला मीन sin x इज इक्वल टू माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन dx, सॉरी sin x dx इज इक्वल टू माइनस के cos x plus c। if we are going to simplify this relation then sin x is minus cos ax plus b, और इस क्वेश्चन में इस टर्म को वी आर एज्यूमिंग एज x बट इट इज नॉट ओनली द x, सो वी शुड डिफरेंशिएट इट dx plus c and divide with the value, यानी इंटीग्रल ऑफ दिस इज माइनस cos ax plus b डिवाइडेड बाय ax plus b plus c। अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो cos ax plus b, और ये जो डिफरेंशियल है इसका ये होगा a ओनली, क्योंकि x का हो जाएगा 1, b का 0 हो जाएगा तो a बचेगा प्लस c, तो आंसर इज 1/a cos ax plus b plus c, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम d by dx को sin x की बात करें तो इसका फार्मूला होता है cos x, यानी sin x का इंटीग्रल मैंने यहाँ पे बताया ये है माइनस cos x प्लस c, और d बाई dx sin x का जो डिफरेंशियल है वो है cos x प्लस k, और अगर मैं d बाई dx ऑफ cos x की बात करूं तो ये होगा माइनस k sin x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशियल हैं। अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशियल की बात करता हूं तो इट विल रिमेन e की पावर x, यानी e की पावर x का डिफरेंशियल भी और इंटीग्रल भी सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ओके, अब इसी तरह का क्वेश्चन अगर हम डिफरेंशियल के फॉर्म में देखते हैं, अगर हम यही क्वेश्चन डिफरेंशियल के लिए देखते हैं तो यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि d बाई dx ऑफ sin ax प्लस b अगर लिखा है, सेम क्वेश्चन बट नाउ वी आर सॉल्विंग द डिफरेंशियल। एक्चुअली मैं ये दोनों साइमल्टेनियसली इसलिए करा रहा हूँ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और मैं सिर्फ उतना ही क्वेश्चन कराऊंगा विच इज यूज्ड इन द फिजिक्स ओनली। तो d बाई dx ऑफ sin ax प्लस b की अगर हम बात करें तो sin का जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल साइन का है cos x, तो इट विल बी cos ax प्लस b एंड मल्टीप्लाई बाई d बाई dx ऑफ ax प्लस b, यानी इंटीग्रेशन में तो x को x मान लिया था, साइन का माइनस कोस फार्मूला होता है, और डिवाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर साइन का हो गया कोस, प्लस का फार्मूला होता है डिफरेंशियल का, और ax प्लस b का d बाई dx ऑफ x प्लस b। अब इसे अगर सोल्व करें तो ये हो गया cos ax प्लस b इंटू, अब ax प्लस b का हो जाएगा a, तो हम इसे लिख सकते हैं a cos ax plus b, a cos ax plus b is the required solution। इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि if we are having a function in this way which is similar to our relation, but here in place of x some other function is given, then we can solve this relation with this trigonometric ratio, with the formula of trigonometric ratio, along with an additional term that is the differential of this. If it is integral then differential will come in the denominator side, means division, and if it is differentiation then the differential of this function will come in the multiplication of the solution।
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। और भी काफी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको और बताता हूँ अभी। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है if we are having a function integral e की पावर ax plus b dx, e की पावर x प्लस b अगर हमारे पास है तो क्या करें, e की पावर x का फार्मूला अप्लाई करें, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही फार्मूला होता है, एंड डिवाइडेड बाय d by dx ऑफ ax plus b plus c, then it will be e की पावर ax plus b अपॉन इसका हो जाएगा a plus c, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी हमने इस बार क्या किया, e की पावर x का फार्मूला लगाया, तो e की पावर x ही फार्मूला है, और जो पावर है वो x नहीं है। अगर ये पावर सिर्फ x होती है, यानी अगर ये सिर्फ e की पावर x dx होता, तो ओनली e की पावर x वी कैन पुट प्लस c, ठीक है। और अगर हम यही फार्मूला में अप्लाई करेंगे भी, तो d by dx ऑफ x जो कि 1 होगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस c एंड e की पावर x प्लस c अगेन। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशियल क्या है, e की पावर x प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ the formulas which I have explained, try to solve these questions. This is your HW. 8 questions of differentiation, 8 questions of integration. तो ये आपको सोल्व करने हैं एंड सेंड द क्लिक ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके।